Hi guys, good morning. Good morning, everyone. So you can make use of, okay, just let me tell you some features here. So some of you are using this WebEx, but some are new to the WebEx application here. So if you are joining from the laptop, so you have one option, just like a right hand side corner, that is the chat option. Chat option. If you find that chat option, please put a message. Yes. Just put a message of yes. If you found that chat option at the right hand corner, bottommost right hand corner, you have one chat option. Yes. Everybody got the option? Chatting. Okay, just go below and right hand side, you will find that chat option. Okay, leave it. Okay, hi, thank you. Yes. That is the chat option. एकदम right side में देखना है आपको. Bottommost right hand corner. Yes. Yes. So this is the option that you are mostly using in my sessions. So whenever I'm asking you some questions, so please answer me with this chat. तो शॉर्ट्स में आंसर करने यस नो, और अगर तुम AWS क्लाउड बोलना है तो AC भी बोल सकते हो, मतलब एकदम शॉर्ट में आंसर देना है इधर से. ठीक है. So did you got the chat, how to use the chat? The session should be two-way communication, so it will be beneficial if it is two-way. So before starting the session, please be there at 7 o'clock exactly. Okay, 10 minutes पहले हमारा session start हो जाएगा. You can join before 10 minutes, and we will continue the session from 7 a.m. sharply, so that we can end up till 8 a.m. in the morning. So any difficulties? My audio is clear, everybody? Yes. कुछ इश्यू है तो सिर्फ चैट पे आपको देना है, इधर भेजना है जो भी डिफिकल्टी है. थैंक यू. And one more thing, you will be getting the recordings, whichever things that we are discussing here. तो आपको पूरा इसका recording मिलेगा. I will share one link, Google Classroom link on the our AWS group, so that you can get the recordings. तो आपको कोई recording करने की ज़रूरत नहीं है. So you can watch the videos later on. तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो बाद में. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी इसकी. डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग. So before starting, we will just so let's start this session. Yes. So let me share my screen first. Everybody is able to see the screen that I'm sharing? Yes. Okay, thank you guys. So here, if you see, we will start with the virtualization first. So because it's the AWS cloud, so you might be knowing what is the meaning of the cloud and
बिफोर गोइंग फॉर द क्लाउड यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज द वर्चुअलाइजेशन. सो पहले हम लोग वो वर्चुअलाइजेशन देख लेते, तो फिर वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स हियर. सो इफ यू हैव वन रिसोर्स और यू कैन से होस्ट, अगर आपके पास एक, suppose you have one personal computer, guys. So you have one personal computer. This is your PC or laptop, whatever may be the machine that you have. तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, और यू कैन से पीसी लैपटॉप, राइट. सो आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है. व्हाट कॉन्फ़िगरेशन यू हैव? ओके, तो आपके पास एक रैम है जो कि अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, 16 GB का रैम है. उसके बाद ओके, तो स्टोरेज है आपके पास, 2 TB का स्टोरेज है, 2 TB का स्टोरेज है आपके पास. एंड अब यहाँ पे भी सीपीयू आता है, तो सीपीयू देखना है हमको पहले. तो सीपीयू आपका है 16 कोर है, 16 कोर है, 16 कोर का आपके पास सीपीयू है. सो यू हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो आई थिंक दिस इज समवॉट वेरी नाइस कॉन्फ़िगरेशन, यस. तो ये एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो आपकी, 16 GB रैम है, 2 TB ऑफ स्टोरेज है, 16 कोर है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, अब अभी मैं अगर जो ये पर्सनल कंप्यूटर फॉर माय जनरल यूज, जनरल पर्पज यूज. सो इफ आई एम यूजिंग दिस फॉर जनरल पर्पस usage, tell me guys, if I'm using this particular computer for my general purpose usage, तो सिंपल टास्क है मेरा. यू कैन से कि मुझे कुछ फाइल्स या फिर ऑफिस वर्क होता है. फॉर ऑफिस वर्क आई एम यूजिंग दिस use case. This is for my office work use case. Tell me, for office work use case like Microsoft Office, Excel, PowerPoint. So is this particular configuration is good choice or it is high configuration? So this is over provisioning, है ना. ये ओवर प्रोविजन है, जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा है, राइट. सो वी डोंट नीड दिस मच कॉन्फ़िगरेशन. आपको इतना कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं है. दिस इज ओवर प्रोविजनिंग. सो कैन यू डू समथिंग विद दैट? अभी आपके पास रैम तो है ही, बट कैन यू डू समथिंग कि आपको इसका रैम कम करना है, कुछ कर सकते हो आप अभी, बिकॉज इट इज हार्डवेयर लेवल थिंग. सो कैन यू डू समथिंग हियर? यस गाइज, आप एक रैम निकालोगे, ये चीज करोगे, राइट. बट इट इज ऑफ नो यूज ना, आपने तो परचेज तो कर ही लिया है इसको. सो व्हाट एल्स कैन यू डू? You will do one important thing, that is the virtualization, guys. You will do virtualization. आप क्या कर सकते हो इस पे? वर्चुअलाइजेशन. अभी वर्चुअलाइजेशन का एक कंसेप्ट है. अर्लियर व्हेनेवर व्हेन दिस कंसेप्ट वाज नॉट देयर, तो क्या होता था, जब सर्वर यूज होता था तो ये होता था होस्ट. दिस वाज द होस्ट. ये होता था हमारा होस्ट, और इस होस्ट को आपको पूरा यूज करना होता था. यू विल बी यूजिंग दिस होस्ट. इवन दो आपका ऑफिस वर्क है, आप इसमें से मुश्किल से 4 GB रैम यूज कर पाते हो, बिकॉज your workload is not of high configuration, so you are only using 4 GB रैम. स्टोरेज आपका 500 GB भी नहीं यूज होता है, ठीक है. आई एम जस्ट सेइंग दैट 500 GB यूज होता है. सीपीयू के कोर आपके ज्यादा नहीं यूज होते, सपोज 2 कोर यूज होते सिर्फ, राइट. 2 कोर यूज होते. सो टेल मी, व्हाट विल हैपन टू दिस 14 कोर्स, and what will happen to this 15 GB, 15 GB, right, 1500 GB and RAM? All the resources are wasted, na. Resource wasted, right. You are not making efficient use of your resources. You are not making efficient use of your resources. So ये चीज पहले होती थी कि आपको होस्ट लेना होता था, और होस्ट को आपको एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे आप इसके ऊपर. क्या करते थे आप? एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे. जैसे कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव वन चैट एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप, राइट. व्हाट्सएप जैसा एक चैट एप्लीकेशन आपने बनाया था, और आपने उसको क्या किया, इस पे डिप्लॉय किया.
सो चैट एप्लीकेशन को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही वो लेगा ना. ओके, इट विल नॉट टेक मोर देन द रिक्वायर्ड थिंग. सो इट वोंट टेक मोर देन दैट. सो अगर चैट एप्लीकेशन को इतना जरूरत है, सो इट विल ओनली टेक दिस मच ओनली. यस. सो इन दिस केस, इवन दो वी हैव द एक्स्ट्रा कैपेसिटी, वो कैपेसिटी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे है ना. ये क्या हो गया, ओवर प्रोविजनिंग हो गया. ये ओवर प्रोविजनिंग हो गया. समझ रहे हैं हर एक को. व्हाट व्हाट इश्यू वी हैव अर्लियर. यस. तो ये इश्यू होता था पहले, बिफोर द वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट और वर्चुअलाइजेशन थिंग. सो ये चीज हमको डायरेक्टली हार्डवेयर लेवल पे एक्सेस होता था. सो यू ओनली हैव ए होस्ट. अभी ये होस्ट है, होस्ट मतलब क्या है, हार्डवेयर है. यू कैन से दिस इज द हार्डवेयर. एंड ऑन टॉप ऑफ दिस हार्डवेयर आपका क्या होता था, बिकॉज यू कांट डायरेक्टली use these resources, you need intermediary. So intermediary is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. सो यू विल बी हैविंग वन ऑपरेटिंग सिस्टम हियर. इसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और आप इसको एक्सेस कहाँ से करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से. तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ रिसोर्सेस यूटिलाइज करता था. इफ यू आर यूजिंग द विंडोज, you may got some issues with the RAM, and then also with the storage. Yeah. So that happens with the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए भी वो कुछ रिसोर्सेस यूटिलाइज करता है. तो ये इशू होता था, और उसके नीचे फिर होस्ट होता था. तो आप इतने जितने भी रिसोर्सेस ऑलरेडी होस्ट के पास है, उतने ही रिसोर्सेस यूज कर पाते थे. नॉट मोर देन, नॉट यू कैन, if the resources are not utilized, then those resources will be wasted. those resources will be wasted. फिर आ गया कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. तो अभी वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, ये सब ऑन प्रीमाइस का चल रहा है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑन प्रीमाइसेस. व्हाट डज इट मीन ऑन प्रीमाइसेस, ये क्लाउड नहीं है, राइट. दिस इज द ऑन प्रीमाइसेस. दिस इज नॉट द क्लाउड गाइस. दिस इज द ऑन प्रीमाइसेस. जब डेटा सेंटर्स होते थे, you like some companies already have the data center there on premise. तो कंपनी में ही एक डेटा सेंटर होता है. तो सर्वर्स, रैक्स, ये सारी चीजें होती थी. तो आपका एप्लीकेशन भी उधर ही डिप्लॉय करते थे, और वहीं से आपका एप्लीकेशन क्या होता था, रन होता था. सो दिस इज द ऑन प्रीमाइसेस. अभी तक हम लोग क्लाउड में नहीं गए, अभी तक हम लोग ऑन प्रीमाइस ही देख रहे हैं अभी. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सम फ्यू concepts, and then we will move to the cloud. So today we will be getting a nice idea about what is the cloud and why we are using the cloud, right? So अभी ये वर्चुअलाइजेशन आ गया, ताकि ये जो रिसोर्सेस है इसका फुल्ली यूटिलाइज हम कर पाए. So what we are doing by the virtualization is a piece of software, you can say. It is a piece of software which will provision, which will provision limited access to the underlying resources. It will provision the limited access to the underlying resources depending upon the your virtualization, right. तो आपने कितना वर्चुअलाइजेशन किया है उसके हिसाब से क्या करता है, रिसोर्सेज को एक्सेस देता है. सो नाउ टेल मी, अभी ये मेरा होस्ट है, होस्ट के ऊपर हमने वर्चुअलाइजेशन किया है. तो ये जो 16 GB रैम था, ये जो 16 GB रैम था, बिकॉज ऑफ द virtualization, because of the virtualization, we can divide this RAM, storage and CPU into different virtual machines. We can divide them into different virtual machines. इसको हम लोग बोलते हैं virtual machines. We call this as a virtual machines. This you can say virtual machines. So this is VM, फर्स्ट वीएम. सो अभी वर्चुअलाइजेशन की वजह से इसमें वीएम जनरेट कर दिया वर्चुअलाइजेशन ने. तो ये हमारा फर्स्ट वीएम है.
So what happens, ये जो 16 GB था, so because of the virtualization we just divided that into small pieces, small pieces. So here RAM will be 2 GB, then अभी स्टोरेज जाने दो, मैं सिर्फ रैम और सीपीयू के डिवीजन लिखता हूँ यहाँ पे. एंड कोर्स विल बी सम 2 कोर्स, 2 कोर. तो ये एक वीएम बन गया है मेरा, करेक्ट. सो लाइक दैट आई विल बी क्रिएटिंग ए मल्टीपल VMs. How many VMs can I generate here? Tell me guys. Calculation simple. How many VMs can I generate here? With this type of thing, 2 GB के कितने VMs बना सकता हूँ मैं अभी तक? We can have a 8 VMs guys. We have the 8 VMs. So हम लोगों को 8 VMs ऐसे वर्चुअलाइजेशन के थ्रू जनरेट हो सकते हैं. We have the 8 VMs. So we have this options now that even though the host has this much of RAM, we are utilizing efficiently. We are utilizing efficiently. तो किस तरीके से efficiently यूज होता है देखो. अभी अभी हमने क्या किया, एक VM1 है तो इस पे हमने चैट एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, चैट एप्लीकेशन डिप्लॉय किया. नेक्स्ट VM2 पे सपोज ईमेल का सर्वर है हमारा, ईमेल सर्वर डिप्लॉय किया. VM3 है, इस पे सपोज हमने डेटाबेस रख दिया. वी हैव हियर डेटाबेस सर्वर. So here we have different VMs, and on those VMs what we are doing, we are deploying different applications. तो अभी ये क्या हो गया, fully utilize हो रहा है, right? Efficient utilization हम कर सक रहे हैं. So this is the virtualization concept. Any doubts with this guys? How the host will be doing that virtualization? I think very simple concept, right? So host has a large amount of RAM, large amount of CPUs, and you need to generate some VMs. And tell me guys, ये इसको divide जो करता है, ये physically करता है या virtually करता है? ये जो RAM divide हो रहा है 2 GB में, ये physically divide हो रहा है या फिर virtually divide हो रहा है? Yes, yes, very nice. That this particular thing is happening virtually, guys. This happening virtually, not the actual thing. Just all those things are happening virtually. Just it is giving access to only this 2 GB. ये virtualization के थ्रू क्या होता है? Only this VM has access to 2 GB of RAM here. तो ये सिर्फ 2 GB RAM पे access ले सकता है, ना कि more than 2 GB. So this happens virtually. So that's the concept of virtualization. So ये physically divide नहीं होता है, ये virtually divide होता है. And also the CPU cores and all. CPU core compute के लिए होता है, और RAM जो होता है वो किस लिए होता है? प्रोसेसिंग के लिए, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए होता है ना. आपके पीसी में भी रैम होता है और सीपीयू भी होता है कि कितना सीपीयू कोर का है, तो जितने ज्यादा कोर होंगे तो उतना पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाते हो आप. सो फॉर हाई कंप्यूटिंग वर्कलोड यू आर यूजिंग मोर नंबर ऑफ कोर्स, तो कोर आप बढ़ाते हो. Yes, guys, this is the simple virtualization concept here. So this we have in our AWS also the same concept. तो AWS में VM को हम लोग क्या बोलते हैं? These VMs are called as instance. In AWS we call this VM as instance. So AWS is providing us with those instance. अभी एक और concept है इसमें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि अभी आपने देखा कि मैंने ये होस्ट है, होस्ट के ऊपर वर्चुअलाइजेशन करके ये बना दिए. आई थिंक सम पीपल माइट हैव डन दिस बिफोर, कि हमने अभी ये मेरा ओएस है, राइट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो इन दिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आई इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, कैन आई इंस्टॉल ए वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन? यस और नो? यस, VMware इंस्टॉल कर सकते हैं ना हम लोग. सो वी get a virtualization software in our laptop also, or personal computer. So that is, we can have
a virtualization locally also, right? So depending upon that, we have two types of virtualization. One is called as bare metal virtualization. We have first is bare metal virtualization और दूसरा होता है second type of virtualization is host based virtualization. You can have host based virtualization. So in bare metal, you can say, I think type 1. Just let me confirm this. Type 1 and type 2 types of virtualizations. Okay. ये एक डायग्राम है और एक अच्छी डायग्राम देखता हूँ. Because to understand the concept of instance in EC2, you should be knowing this concept very well. ठीक है, ये बढ़िया डायग्राम है. एंड वन मोर थिंग, आई विल नॉट बी शोइंग यू द पीपीटीज एंड ऑल. तो जो भी हम लोग करेंगे तो ये गूगल ही यूज करेंगे कभी भी, राइट? सो दैट वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, आप AWS पे वर्क करो या जो भी आपको इश्यूज आते हैं, सो यू शुड बी नोइंग व्हाट टू सर्च एंड वाइट एंड हाउ टू सर्च. तो ये सर्चिंग स्किल्स पे आपके डेवलप हो सकते हैं. सो आई विल नॉट बी शोइंग यू द पीपीटीज, मेरे पास पूरा प्रिपेयर्ड नहीं होता है. सो यू कैन सर्च लाइक दैट, ओके? सो विच विल बी हेल्पफुल whenever you are troubleshooting something. तो हम लोग AWS में भी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इधर से ही देखेंगे. वी विल नॉट बी ब्रिंगिंग एनी डॉक्यूमेंट्स हियर. आपको नोट्स में दूंगा, बट वी आर गोइंग टू सर्च एवरीथिंग हियर. इवन दो पॉलिसीज जो भी हम लोग करेंगे तो वो सारा इधर से सर्च से ही करेंगे, राइट? सो यू विल हैव ए रियल टाइम एक्सपीरियंस हियर. सो हाउ टू वर्क. अभी देखो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स है. एक है टाइप 1 एंड टाइप 2. तो अभी टाइप 1 में क्या होता है? द सेम विच आई एम सेइंग हियर, दिस इज द टाइप 1. तो यहाँ पे रहने दो, ये टाइप 1 ही पकड़ लो, वर्चुअलाइजेशन टाइप 1 एंड टाइप 2. दिस इज द टाइप 1 एंड दिस इज द टाइप 2. टाइप 1 एंड टाइप 2. तो टाइप 1 में देखो क्या होता है. हार्डवेयर है मेरे पास. नाउ इज इट विजिबल एवरीबॉडी? यस. सो दिस इज द हार्डवेयर विच वी हैव हियर. सो ये हार्डवेयर मतलब क्या है? होस्ट का है, राइट? जो भी हमारा हार्डवेयर होस्ट, या यू कैन से द हार्डवेयर लेवल, जो रैम CPU जो हमने इधर बताया था ना अभी, ये वाला, दिस इज द हार्डवेयर गाइस. तो अभी ये हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर के ऊपर ये VMM है ना, वर्चुअल मशीन मैनेजर ये बोल रहे हैं, बट वी कैन कंसिडर इट एज अ वर्चुअलाइजेशन. तो आप इसको हाइपरवाइजर बोल सकते हो या फिर वर्चुअलाइजेशन. तो यू द मोर प्रॉपर वर्ड इज द हाइपरवाइजर हियर. ठीक है? तो हार्डवेयर के ऊपर क्या है? डायरेक्टली वर्चुअलाइजेशन हो रहा है. सो इफ यू आर डायरेक्टली using virtualization or hypervisor on the hardware, so that is called as type 1 or 2 guys. It is the type 1 type of hypervisor, and this virtualization is called as type 1 virtualization. And this type 1 virtualization is also called as bare metal virtualization. Bare metal virtualization. So on top of this virtualization, we have the guest 1, guest 2, this type of guest operating systems. This type of guest operating system. So जो भी OS या VM आपको यहाँ पे मिलता है, राइट? सिर्फ आप ये VM बना के छोड़ दोगे क्या? इसके ऊपर आपको एक OS भी इंस्टॉल करनी होती. Yes guys, on top of this virtualization you need to install an OS. So this, because this OS is called as guest operating system. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्ट OS बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द गेस्ट OS. ये टर्म्स है जो कि आपको
याद रखनी जरूरी है. These are all the guest OS. These all are the guest OS. So in type 1 hypervisor, we are installing the virtualization or the hypervisor directly on the hardware. So this is called as type 1 type of virtualization. And here the individual VMs OS is called as which OS? Individual VMs OS is called as guest OS. Guest OS. You can also say GOS, right? Short form में आपको आंसर करना है तो. So these are all called as the guest OS. समझ में आ गया टाइप 1 हाइपरवाइजर और टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन सेम. अभी टाइप 2 देखते हैं हम लोग. ठीक है, अभी ये हार्डवेयर है. दिस इज माय फिजिकल रिसोर्सेस, जो कि हमने इस डायग्राम में हमने ये बताया था. दीज आर द फिजिकल रिसोर्सेज गाइस, राइट? सो दीज आर द फिजिकल रिसोर्सेज हियर. सो द सेम हियर. अभी हमने क्या किया है, इस पे डायरेक्ट हाइपरवाइजर नहीं इंस्टॉल किया है. व्हाट वी डिड, वी इंस्टॉल्ड एन ओएस ऑन दैट. हमने क्या किया, हार्डवेयर जो था उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल किया फर्स्ट. जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप होता है, राइट? तो लैपटॉप में आपका पास हार्डवेयर है. लैपटॉप में मतलब क्या, हार्डवेयर है. हार्डवेयर पे आपने क्या किया, एक ओएस इंस्टॉल किया है. सो दिस ओएस इज कॉल्ड एज होस्ट ओएस. जो भी ओएस डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हो आप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होस्ट ओएस. दिस इज कॉल्ड एज द होस्ट ओएस. एंड in that operating system you are installing an software which is the virtualization software. You can install a VMware, you can install a multiple Oracle, you can install application from the Oracle VirtualBox. So there are different applications that are available, which are free also. So you can use those software on the host OS. अब ये host OS पे आप ये software install करते हो, and then on top of that virtualization, because that is the property of virtualization and use case of virtualization, to create a guest operating system or guest VMs. तो अब यहाँ पे guest 1, guest 2, guest 3, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ हार्डवेयर. अगर चाहिए इस टाइप का हार्डवेयर है 16 GB और 16 कोर, तो आपने देखा इधर कितने ओएस हम लोग बना सकते थे, 8 VMs वी कैन क्रिएट. तो अभी 8 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप रन कर सकते हो एक हार्डवेयर पे. यस. तो बट अभी ये टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? Only in the type 1, this is the hardware level or bare metal virtualization, and type 2 is not a bare metal, it is the host level virtualization, because we are installing the host operating system, and on top of that host operating system we are installing the virtualization software. और ये फिर अलग अलग VMs क्रिएट करके देता है हम. यस गाइस, कंसेप्ट क्लियर होगा ये दोनों का, टाइप 1 और टाइप 2. इट्स मोस्ट रिक्वायर्ड कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द EC2. तो ये कुछ भी चीज ऐसी टाइम पास के लिए नहीं हो रही है, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूज केस, राइट? सो लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर. टेल मी गाइस, टाइप 1 इज मोर इफिशिएंट और टाइप 2 इज मोर इफिशिएंट? जस्ट ऑब्जर्व हियर. मैंने इधर एक चीज आपको बताई थी कि देखो यहाँ पे कुछ मैंने बताई थी, यहाँ पे इधर. हाँ, टेल मी, टाइप 1 इज efficient. Please listen carefully. Efficient, I am asking. Efficient is type 1 or type 2? What does it mean? Efficient मतलब कि जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके पास यहाँ पे, तो सारे रिसोर्सेस अच्छे से यूज होनी चाहिए. सो इन विच केस द रिसोर्सेस विल बी यूटिलाइज्ड वेरी इफेक्टिवली. अगर 16 GB के आपके पास मेमोरी है या फिर रैम है, तो पूरा की पूरा 16 GB यूज होती है. टेल मी, विच वन इज द बेटर, टाइप 1 और टाइप 2? आई थिंक यू, most of the people are saying type 2. Yes, but yeah. So this is the correct one. That is the type 1 is the most efficient. Why? I just told you na. Here on the operating system, if I am installing the operating system on the host, so OS को भी कुछ resources लगेंगे या ऐसे ही चलेगा OS? कभी आप Windows इंस्टॉल करके देख लेना क्या वो कितना मेमोरी खाता है अपना. 20 to 30% will be utilized for only Windows operating system. So tell me, so ये अगर आपका 8 GB रैम भी है तो, राइट? तो OS जो भी है ये भी रिसोर्सेस कंज्यूम करनी करेंगे, राइट? OS is also going to consume some resources. So tell me guys, on this type of type 2 hypervisor, if host OS जो है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अगर से रिसोर्सेस कुछ यूटिलाइज करता है, तो सपोज होस्ट ने क्या किया है, लेट मी
सपोज कि ये जो होस्ट ओएस है इसने क्या किया, इफ ऑन द हार्डवेयर लेवल पे मेरे पास रिसोर्सेस है, आई विल जस्ट गिव यू सिंपल केस लाइक 16 GB रैम है मेरे पास और 16 कोर्स है on the hardware, right? So this I have. And on the host, because this is the operating system ना, ये भी कुछ resources utilize करेंगे. तो host OS क्या कर रहा है? Out of the 16 core, host OS is utilizing 3 GB memory and just take 2 core ले रहा है या 3 core ही ले रहा है, चलो एग्जाम्पल सिंपल हो जाए इसलिए 3 3 चला गया इसमें, ठीक है। अभी इसने इसमें तुमने भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ये वो इंस्टॉल वगैरह कर दिया है सब चीज, फिर this particular hardware resources would be utilized for the guest OS, right? So these will be utilized to create guest OS. Tell me, तीन तीन तो चले गए, कितना बचा अभी? अभी कितना बचा मेरे पास? After consuming, only I have 13 guys. Only I have 13 GB of memory and 13 GB of 13 core of CPUs. तो 13 GB और 13 कोर में ही मेरे को अभी गेस्ट ओएस देने इधर। यस, अनलाइक दिस थिंग। तो अगर इधर ये सारी चीजें सेम ऐसी है, अगर मेरे पास यहाँ पे भी सेम चीज है, तो इज देयर एनी ओएस दैट इज कंज्यूमिंग द रिसोर्सेस? इज देयर एनी ओएस दैट इज कंज्यूमिंग द रिसोर्सेस? ओएस बहुत खाता है, राइट? कंपेयर टू दिस हाइपरवाइजर, ओएस विल टेक so much resources. So 16 GB or 16 core है, just for an example purpose, what I will be doing, I will be saying, and I think this is the not wrong if I am saying that 16 GB और 16 कोर पूरा की पूरा हम लोग वो ये जो VMs है ना वो बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. So these all are the VMs. So you can say that this is the VM1, this is the VM2. So like that you can create a VMs. So tell me, in type 2 virtualization, do I have a host OS? Yes or no? Simple. Yes, host OS is there. In type 1, host OS is there? Yes or no? In type 1, is there any host OS? No. Which one is more efficient? Type 1 or type 2? Very nice, guys. Very nice. The type 1 is more efficient. So tell me, which type of virtualization that AWS will be using? Because AWS is a global market, in the global market for so many years, global leader. So which type of hypervisor that those people will be using is the type 1, not the type 2. Yes, so this is the more efficient. That's why the type 1 hypervisor is used. And I think Ritesh has already told that Zen type of hypervisor they are using. Yes, they are using the Zen type of hypervisors. Yes, so this is all about the virtualization. So तो ये बहुत important था because I want to show you this. Let's have a look here. Now I think we done with the hypervisor properly. तो और दो concepts हैं before starting with the our session of AWS or basically clouds. So we have two concepts. So एक concept है कि जो कि important है, जो कि elasticity है, right? Elasticity and scalability. Scalability. ये AWS के लिए बहुत डायनेमिक concepts हैं ये दोनों. तो इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी, जब आप इलास्टिसिटी कंसेप्ट के बारे में बोलते हो कि इलास्टिक और नॉट, सो इलास्टिसिटी मतलब you can consider it as a rubber band. It is very similar to the rubber band. You can increase or increase or decrease the capacity, guys.
कैपेसिटी। अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैपेसिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सर्वर्स इन एडब्ल्यूएस, बट हम लोग अभी एडब्ल्यूएस नहीं देख रहे, जनरल कंसेप्ट के बारे में सोच रहे हैं। सो इलास्टिसिटी इज, यू कैन कंसिडर इट एज अ रबर बैंड। ये एक एग्जांपल के लिए है, इसको बोलना मत रबर बैंड, राइट? सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सो इलास्टिसिटी इज वेरी सिमिलर टू द rubber band which will increase and decrease the capacity, increase or decrease the capacity. Tell me guys, if you have a rubber band, you can increase the like you can stretch and de-stretch, right? So you can stretch and de-stretch, मतलब आप उसका साइज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी कंसेप्ट। तो वो परमानेंट होता है क्या जब आप उसका साइज बढ़ाते हो? सो दैट विल बी परमानेंट और टेम्पोररी? Simple thing. Will it be permanent or temporary? So this will be the temporary, right? This is the temporary. So elasticity is a temporary concept. Elasticity is a temporary, or you can say the short term concept. This is the short term concept. Elasticity is very similar to the rubber band to increase or decrease the capacity, and this is the temporary or short term concept. Temporary or short term concept. So in AWS, we have a service where we can do this. We will see that later on. So just remember, increasing or decreasing the capacity, and this is the short term. And what is the scalability? Scalability is the increasing increasing the size of server. Increasing the size of server. That is called as the scalability. Scale, you can say that you are scaling the server. मतलब आप size बढ़ा रहे हो. So this is mostly the permanent thing, right? Permanent, or you can say that long term concept. Long term concept. ये जो scalability का concept है ये long term concept होता है. This is not limited duration. This is not for limited duration. So this concept is permanent, or you can say that long term concept. तो जब भी आपको कभी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर का साइज बढ़ाने के लिए कोई बोलता है, सो दैट इज नॉट फॉर द लिमिटेड ड्यूरेशन, तो आपको ये लॉन्ग टर्म का ही होता है. सो दिस इज द स्केलेबिलिटी. इलास्टिसिटी मतलब क्या? तो जैसे ही आपका वर्कलोड बढ़ता है, एंड दिस शुड मैच द डिमांड, राइट? तो आपका वर्कलोड मतलब कैसे कि आपका एक वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट अच्छे से चल रहा है, आपने सर्वर उसको दे दिया है. सपोज आपने एक सर्वर का कैपेसिटी दे दिया है, 2 कोर है, 2 CPU है, अच्छे से चल रहा है सब. बट क्या हो गया, अचानक से सैटरडे संडे छुट्टी था, तो आपके जो वेबसाइट था उस पर बहुत लोड इंक्रीज हो गया इमीडिएट. तो लोड इंक्रीज होते के साथ आपका जो वेबसाइट था वो क्या हो जाएगा फिर? बिकॉज दैट वेबसाइट कैन नॉट सर्व द पीपल, राइट? वेबसाइट कैन नॉट सर्व द पीपल विद द डिमांड. ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से वो वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है. सो व्हाट हैपन्स इन दिस इलास्टिसिटी, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. ये क्या करता है, अभी एक इंस्टेंस था ना, उसके दो बनते, दो के चार बनते, चार के आठ बनते, राइट? एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सर्विस. दैट सर्विस इज द ऑटो स्केलिंग. दैट सर्विस इज ऑटो स्केलिंग इन एडब्ल्यूएस. तो आपको एडब्ल्यूएस में एक सर्विस देता है जो कि ऑटो स्केलिंग होता है. सो हियर इन फॉर द स्केलेबिलिटी, you have you have the option in the EC2 that you can increase the size of the server here. So just to remember that elasticity is what and scalability is what. Just to know those two concepts, I want this. And I also want to tell you guys one more concept of high availability. High availability. HA, you can say HA, very important for critical organization. ये जो high availability का concept है ये बहुत important होता है. So what is high availability? देखो high availability जो है ये concept जो है, जैसे कि आपने एक सर्वर डिप्लॉय कर दिया है and your user are accessing that server, whether it could be the chat server or website, जो भी है आपका. तो जब भी यूजर एक्सेस करता है ना, तो उसको वेबसाइट क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए. वेबसाइट क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए. whenever user is accessing the server, user should not get any message, error message. So that is the high availability. it defines it defines for how much time your
your application or resources are available. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कब तक अवेलेबल है आपका, जैसे ही आप कुछ मेंटेनेंस निकालते हो या फिर और कोई चीज होता है, फॉर एनी रीजन, इफ योर वेबसाइट इज नॉट एबल टू एक्सेसिबल टू यूजर्स, then that is you can call that particular thing as a, if your application is not available or not accessible, then this is called as downtime. This is called as downtime. So downtime होता है, this is called as the downtime. So downtime is not preferable in any type of organization. So downtime कभी भी नहीं होना चाहिए. एवरी टाइम यू शुड बी लुकिंग फॉर हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट, हाई अवेलेबिलिटी. तो इसमें क्या होता है कि आप लोग भी ऐसे करते हो, राइट? सो आपके पास एक लैपटॉप है तो आप एक और रिसोर्स रखते हो साइड बाय साइड, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मोबाइल भी रखा होगा आज के सेशन के लिए, if they are more serious about that. So if the laptop has some issue, then you can log in with the mobile phone also. So that is the high availability concept, कि आपको डाउन टाइम नहीं करना है. जैसे ही आपका लैपटॉप डाउन होता है तो आपके पास मोबाइल भी हो, मतलब यूज कर पाए हम. So that is the high availability in, if you are using the cloud, उधर आप क्या करते हो, मल्टीपल सर्वर्स पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में डेटा या फिर एप्लीकेशन रखते हो ताकि कभी भी आपका एप्लीकेशन डाउन ना रहे. सो डाउन टाइम और हाई अवेलेबिलिटी ये रिलेटिव कंसेप्ट बोल सकते हो आप. इफ माय एप्लीकेशन इज हाईली अवेलेबल, अवेलेबल, what it indicates, what it indicates, I have the zero downtime. Yes guys, बराबर ना? If my application is highly available, then I can say that my application has the zero downtime. जब भी आपको ये कंसेप्ट कोई बोलता है कि you we should be maintaining the zero downtime, that means your application is highly available, it will be available for all the duration, for all the duration. तो जब भी यूजर एक्सेस करने का कोशिश करता है उसको वेबसाइट मिलता ही है. दैट यूजर शुड नॉट फेस एनी इश्यू विद द वेबसाइट. तो उसको वेबसाइट का पेज लोड होकर उसके लैपटॉप में या ब्राउजर पे आना ही चाहिए. सो दैट इज द अवेलेबिलिटी कंसेप्ट. और एक कंसेप्ट है ड्यूरेबिलिटी कंसेप्ट, जो कि यस3 के लिए बहुत यूजफुल है. एक सर्विस है AWS में यस3 करके, तो उसके लिए यूजफुल है, तो उसको एक और हम लोग ये कर लेते हैं. Right. Let me take that also here. Durability. Durability. Everybody is getting the concept, guys? कुछ issues आ रहे? सिंपल सिंपल टर्म्स मैं खाली अभी ले रहा हूँ आज, तो यू शुड बी फेमिलियर. नाउ सी ड्यूरेबिलिटी क्या है. तो अवेलेबिलिटी समझ में आ गया, अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, यूर एप्लीकेशन और डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट. ये होता है ड्यूरेबिलिटी. ये होता है ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, आपने सर्वर में डेटा रखा था और वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, मतलब डिलीट हो गया. डिलीट, और मतलब वो डेटा चला गया. यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू दैट डेटा नाउ. सो दिस इज द ड्यूरेबिलिटी. सो ड्यूरेबिलिटी शुड बी हायर और इट शुड बी लोअर. ड्यूरेबल होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, it should be the high durability. Okay, high durability is preferred, guys. High durability is preferred. So durable होना चाहिए. जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तब आपको डेटा या जो भी कुछ उसका है तो आपको मिलना चाहिए. Then most of the people will be confusing in between high availability and durability, because यस3 में ना ये एक कंपेरेटिव पैरामीटर है, मतलब कंपेयर करने के लिए पैरामीटर होता है, विच विल बी द अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते लोग. तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या, अवेलेबल. अभी देखो मैं अभी अवेलेबल हूँ, राइट? टुडे आई एम अवेलेबल. सो इफ आई हैव सम वर्क फॉर द टुमारो, सो आई सो आई एम नॉट टेकिंग द सेशन फॉर द टुमारो.
जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, सो अगर से मैं कल सेशन नहीं लूंगा तो मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, राइट? दैट डज नॉट मीन कि मैं कभी सेशन ही नहीं लूंगा, राइट? दैट इज नॉट द ड्यूरेबिलिटी. सो दिस इज द अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबिलिटी नहीं है कल मेरी, बट आई विल बी अवेलेबल डे आफ्टर टुमारो, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज द हाई अवेलेबिलिटी. व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी मतलब कि लॉस्ट हो गया है पूरा टोटली, राइट? यू कैनॉट हैव द एक्सेस लेटर ऑन. तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूरेबिलिटी. सो ड्यूरेबिलिटी शुड बी वेरी वेरी हाई. इट शुड बी equal to 100%. It has to be very near to 100%. So if it is near to 100%, then only people will give you their data. तभी डेटा people क्या करेंगे, आपके इसमें भेजेंगे. अदरवाइज दे विल नॉट ट्रस्ट यू, बिकॉज यू डोंट हैव द ड्यूरेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का तो समझ सकते हैं कि कुछ डाउन टाइम के बाद ये अप आ सकता है, बट हियर द डेटा विल बी लॉस्ट फॉर एवर. डिड यू गॉट द कंसेप्ट बिटवीन देम? हाई अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, सिंपल कंसेप्ट था, राइट? सो नाउ कमिंग बैक टू दी क्लाउड. तो अभी एक 10 10 मिनट और लेते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग अभी क्लाउड देखते हैं. व्हाट इज द क्लाउड? सो देखो अभी क्लाउड में क्या होता है ना, कि आई थिंक वी डिस्कस ऑलरेडी इन द डेमो सेशन आल्सो, कि क्लाउड जो है तो एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म यू कैन से, कि जहाँ पे कि आप पर्सनल, अभी हमने हमने इधर देखा था, राइट? यहाँ पे देखा था, ये क्या है, ऑन प्रीमाइसेस है. ये सारी चीजें किसको करनी थी पहले, जब ये ऑन प्रीमाइस होता था? देन ऑल दोस थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय whom? Yourself, guys. You need to take care of all those things. Yes, yeah, support. Yeah, Kancham bhai. It's the support people that they will be looking into this. So everything will be looking by the support people, or you can say the organization. So organization has to do all those things for them. So this is the concept that was already that established. जो भी established companies है, IBM है, जो भी पुरानी कंपनीज थे जिनके पास ऑलरेडी ऑन प्रेमाइस है, तो उनको ये सारी चीजें पता होती है और वो लोग ये करते भी थे पहले. बट दैट वाज ए लॉट ऑफ पेन गाइस, बिकॉज टू मेंटेन दिस होस्ट, बिकॉज ये होस्ट को आपको मेंटेन करना है, इसमें कुछ इश्यू आता है तो आपको लुकआउट करना है, इसके लिए प्रॉपर कूलिंग चाहिए, उसके लिए एसी कूलिंग एवरीथिंग यू नीड टू मेंटेन, है ना? तो ये सारी चीजें कौन देखता था फिर? ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन वर्कलोड बहुत बढ़ता था. सो दैट यू डोंट फोकस मोर ऑन दीज थिंग्स. आप लोग ना, इफ यू सी हियर, सिंस यू आर looking more onto these parts, so this part will be neglected, or you can say that this part, ये अपना मेन पार्ट कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बिकॉज वी आर द आईटी, सो वी नीड टू डिप्लॉय एन एप्लीकेशन. आपको ये एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना होता है. आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये है, राइट? यस और नो? यही है ना आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम. तो आप ये एप्लीकेशन बेच के तो कमाते हो, नॉट दिस. ये तो आप आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए यूज करते थे. So you are wasting more resources on this. So what AWS or many cloud platforms right now, they are what doing? They are maintaining all those stuff for you guys, and you just focus on these applications. तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस एप्लीकेशन पे फोकस करना है, ना कि ये सब हार्डवेयर लेवल थिंग्स. सो दैट वाज वेरी इजी टू वर्क विद दिस टाइप ऑफ थिंग. तो अभी क्या होता है, आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत है अभी नहीं, बिकॉज AWS क्लाउड इज प्रोवाइडिंग यू द इंफ्रास्ट्रक्चर. यस. सो अभी जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेस है तो AWS प्रोवाइड करता है आपको. मतलब क्या क्या देगा AWS आपको? AWS, I am just particularly saying now AWS, because I am not just directly like teaching you the cloud. Just AWS I am saying. AWS बोलते के साथ तो क्या है? One cloud platform है, right? AWS is one cloud platform. तो AWS क्या देता है आपको? आपको CPUs देता है compute capacity में, मेमोरी देता है आपको, आपको फिर OS देता है. You don't have to bring your OS or licensing, nothing. You don't have to worry about it. So OS गया. Cooling, tell me guys. Cooling, then power connectivity, then network, strong backbone network है AWS का.
और प्रॉपर नेटवर्किंग देता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, वेरी नाइस, सिक्योरिटी। और क्या देता है? सिक्योरिटी देता है। ओके, तो डीबी, दैट इज, ओके ठीक है, डीबी भी देता है, बट इट कम्स अंडर दिस ओनली। तो रिसोर्सेज देता है बेसिकली, राइट? सो सिक्योरिटी हो गया। फिर ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है? ये, एंड आल्सो द सर्विसेज, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। okay. तो ये बेसिकली द क्लाउड is there only to provide you, it will give you the infrastructure, it will give you the infrastructure। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। ओके, सो एवरीथिंग विल बी मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय द एडब्ल्यूएस। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सीपीयू, मेमोरी, ओएस जितना चाहिए ना उतना खाली बोलना है उसको, विद इन नो टाइम इट विल प्रोविजन यू। बट यही सेम चीज अगर आपको इधर करनी होती थी ना, तो आपको मार्केट में ऑर्डर परचेज करने के लिए कोटेशन बनाना है, कोटेशन डालना है, फिर वो एक्सेप्ट होगा कोटेशन, फिर उसके बाद आपको ये जो रिसोर्सेस है वो मिलेंगे, आपके ऑन प्रीमाइस पे आएंगे, फिर उधर आपको अनलोड करके उसको आपके रैक्स में प्रॉपरली मेंटेन फिक्स करना है, फिर उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन लगाना है, फिर ये वीएम्स क्रिएट करने हैं, फिर उसको यूज करना है। सो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम गाइस, बट हियर विद इन 2 or 3 minutes यू विल गेट योर वीएम अप एंड रनिंग। उस पर आप एप्लीकेशन चढ़ा दो और एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन। जब आपको लगता है कि एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, छोड़ देना है, आपको निकालना है उसको, तो जस्ट यू टर्मिनेट द इंस्टेंस, टर्मिनेट द वीएम, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू पे लेटर ऑन। बट यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होंगे? वेस्टेज हो जाएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो ये फिर ये जो आपने परचेज किया था हार्डवेयर, दैट इज ऑफ नो यूज देन। यस गाइस, तो ये क्लाउड का पावर है, दैट्स व्हाई द क्लाउड इज मोर पॉपुलर इन द मार्केट, इवन फॉर लो लाइक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर आल्सो द बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके लिए भी ये बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। सो नाउ वन कंसेप्ट इज देयर, टेनेंसी, जो कि मुझे एक देखना है, टेनेंसी। टेनेंसी मतलब क्या होता है कि हाउ यू आर शेयरिंग द रिसोर्सेस। टेनेंसी मतलब हाउ यू आर शेयरिंग द रिसोर्सेस। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होती है शेयर्ड टेनेंसी, one is the shared tenancy and another one is the dedicated dedicated tenancy। ये दो टाइप के टेनेंसी होते हैं guys, शेयर्ड और डेडिकेटेड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आई विल टेल यू विथ वन एग्जांपल, नाइस एग्जांपल। आपने कभी ओला उबेर में शेयर्ड ड्राइव किया है? शेयर्ड, शेयर्ड ड्राइव, शेयर, क्या बोलते हैं उसको? शेयर्ड राइड बोलते हैं, हाँ शेयर्ड राइड। शेयर्ड राइड क्या है? कि आप अकेले नहीं होते हो गाड़ी में, राइट? यू हैव 2 to 3 peoples, 3 peoples are there in your whatever ride that you booked। और एक होता है डेडिकेटेड राइड। अर्लियर ओनली डेडिकेटेड राइड होता था। ओके, इट इज अप टू यू, है ना, आपके साथ कौन कौन है उसके हिसाब से आप उधर मतलब यूज कर सकते हो, राइट? इफ यू आर अलोन देन यू कैन, you have only 1 people, if you have one family, so you can have 3 people, 4 people, depending upon the size of the vehicle that you are riding, you are booking the ride, you can utilize that particular ride। तो टेल मी गाइस, शेयर्ड राइड में तीन जो लोग हैं, ये आपके फ्रेंड्स रहते हैं क्या तीनों भी? ओके, दो लोग जो दूसरे हैं वो आपके फ्रेंड्स होते हैं क्या, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर होते हैं क्या? नो गाइस, दोज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट पीपल। सो यहाँ पे आप कौन आपके साथ आएंगे ये डिसाइड कर सकते हो? कैन यू डिसाइड हु विल बी देयर विथ यू? हाँ, till that people will be there inside your car, you won't be able to find who are those people। so that is called as the shared thing। और डेडिकेटेड में क्या होता है? डेडिकेटेड में पूरा आपने जो राइड था या फिर पूरा व्हीकल था ये बुक कर दिया है, तो आपको पता है कि आपके साथ कौन आने वाला है, बिकॉज यू आर द ओनली वन, इफ नो बडी इज देयर विथ यू, मतलब आप अकेले ट्रैवल करोगे उसमें, या फिर आपके साथ कोई और है, तो दैट विल बी हियर। ओके,
सो दिस इज नथिंग बट डेडिकेटेड राइड। तो ये हो गया किसके लिए? ओला उबेर कंसेप्ट हो गई है। ठीक है, ओला और उबेर। पहले क्या थी कंसेप्ट? पहले थी सिर्फ आपको राइड बुक करनी है और आपको जाना है बस। तो टेल मी गाइस, शेयर ड्राइव इज चीपर एज कंपेयर टू द प्राइस। प्राइस कंपेयर करने के बाद आपको कौन सा सस्ता लगता है, शेयर्ड और द डेडिकेटेड? दिस विल बी द चीपर एंड दिस इज लिटिल बिट कॉस्टलियर, है ना? कॉस्टलियर होता है, बट कंफर्ट किस में ज्यादा है? वेयर यू हैव द कंफर्ट, मोर कंफर्ट, डेडिकेटेड? यस। So here more options you have, more options you have, right? You have more control, you can say, ऑप्शन से ज्यादा कंट्रोल है आपका, राइट? आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन आपके साथ ट्रैवल करेगा, राइट? हियर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, नो कंट्रोल। यू हैव कंट्रोल विथ जस्ट वन पीपल, तो एक किसी को भी आप उसमें राइड करने के लिए दे सकते हो, दैट इज द कंट्रोल यू हैव। सो अभी AWS में क्या होता है? द सेम थिंग इज देयर इन द AWS। AWS में जब आप VM इंस्टॉल करते हो, सो टेल मी गाइस, VM कहाँ पे आएगा? होस्ट पर ही चढ़ेगा ना VM आपका? यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वट एवर द कंसेप्ट आई एम टेकिंग हियर, दैट इज श्योरली फॉर सम एप्लीकेशन यूज केस पर्पज। तो अभी मैंने ये जो लिया था कंसेप्ट, तो टेल मी ये जो VM जो बन रहे हैं, so if I am only accessing this VM, if I want only one VM here, I am not accessing all overall host, मैं पूरा होस्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं कर रहा हूँ। Then tell me guys, this is the shared or dedicated? सिर्फ मैं ये VM ले रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक सीट बुक कर रहा हूँ, मेरे जो बाइक या फिर जो भी राइड है उसमें सिर्फ एक सीट बुक कर रहा हूँ, नॉट होल होल राइड। टोटल गाड़ी नहीं बुक कर रहा हूँ मैं, ओनली वन। लुक एट हियर, इफ आई एम बुकिंग ओनली वन पीपल, देन व्हाट विल बी द थिंग? दैट इज द शेयर्ड ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना ये चीज? ज्यादा मैं डीप जा रहा हूँ तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? सिंपल है, देखो। ये चीज है कि देखो, शेयर्ड में है तो शेयर्ड में आपके साथ कोई भी हो सकता है, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, सो यू हैव कंट्रोल विद ओनली वन VM। तो आपका जो VM है ये क्या होगा? शेयर्ड शेयर्ड VM होगा, राइट? तो ये शेयर्ड है, शेयर्ड में क्या होता है? यू हैव ओनली कंट्रोल विथ वन VM, आपको एक VM मिलेगा। बट डू यू हैव एनी कंट्रोल विथ होस्ट? होस्ट लेवल कंट्रोल होता है यहाँ पे, होस्ट लेवल कंट्रोल होता है। क्या आप ये बोल सकते हो AWS को कि एक VM मेरा है, तो एक VM, दूसरा VM भी मेरे मतलब अकाउंट में का ही चाहिए, या फिर मेरे दूसरे अकाउंट का ही चाहिए? तो ये नहीं बोल सकते हो आप यहाँ पे। यू आर नॉट कंट्रोलिंग द होस्ट, इवन यू डोंट, यू कांट इवन सी विच होस्ट इज देयर। तो आप होस्ट को देख भी नहीं सकते हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो। यू ओनली हैव कंट्रोल टू योर ओनली VM। सो सिर्फ VM पे आपको कंट्रोल होता है, ना कि पूरे होस्ट को। सो डेडिकेटेड में क्या होता है आपको? एक, दिस इज डेडिकेटेड टू यू, dedicated to you. Here do you have any host level control? Yes, यहाँ पे नहीं है, हाँ? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, here you don't have any host level control, but here you have host level control। तो यहाँ पे आपको होस्ट लेवल कंट्रोल होता है डेडिकेटेड में। AWS में डेडिकेटेड टेनेंसी के भी कुछ टाइप्स है, दो टाइप आते हैं। तो डेडिकेटेड इंस्टेंस और डेडिकेटेड होस्ट। तो हम लोग ये जब EC2 स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग इसको देखेंगे। अभी सिर्फ इतना कंसेप्ट समझना जरूरी था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द शेयर्ड एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डेडिकेटेड। विच इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस? ओला उबेर, शेयर राइड। अगर किसी को पता नहीं है तो एक बार चेक करना शेयर्ड राइड कैसी होती है और डेडिकेटेड राइड कैसी होती है। वहाँ पे डेडिकेटेड नाम नहीं है, शेयर्ड का नाम है, डेडिकेटेड नहीं। जस्ट बुक करने के बाद वो डेडिकेटेड ही होता है। सो शेयर्ड और डेडिकेटेड। तो आप यही सेम कंसेप्ट इधर लगा सकते हो फिर इन द AWS। तो लास्ट कंसेप्ट गाइस, just hold on for 1-2 minutes. So just let me clear one concept, that is capex and opex। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, capex and opex। what is capex? I'll tell you what is capex। capex is called as capital expenditure। capex is called as capital expenditure। what is opex?
It is operational expenditure. This is the operational expenditure. So capex and opex. Tell me guys, whenever you have the on premise thing, आपके पास on premise thing है, तो on premise के लिए आपको क्या करना होता था? When there was an on premise thing, so you need to purchase the hardware and buy so many things. So many things. Yes. Do you agree with me, guys? You need to purchase everything, right? You need to purchase the compute capacity, AC, location, everything you need to buy and purchase, right? So when cloud comes in the market, then do you have to purchase anything, guys? Is there any need to purchase? No purchase needed. No purchase needed. आपको कोई purchase नहीं करना है, ठीक है? This is for on premise. And in the cloud, you don't have to purchase anything. No purchase is needed. Here you need to purchase everything. So this is something related to buying your own car. ठीक है? Buying your own car. So if you are buying or purchasing your own car, then you can compare it to your on-premise thing. तो आप एक गाड़ी खरीदते हो पूरी, yes, you have, oh, like you have full control on your car, right? आपको पूरा कंट्रोल है, but who will going to take care of the car, guys? अगर उसको डेंट आता है तो कौन ठीक करेगा? You are the one who is going to take care. Then अगर जो उसमें टायर पंक्चर होता है, कौन देखेगा उसको? You guys, you are only taking care of that. So if you want to maintain, who will take care? You are the one who is going to take care. So each and everything that you need to take care here. And tell me guys, whenever you are purchasing the car, it's EMI, it's like you can say the down payment आपको देनी है, या फिर आपको उसका इंश्योरेंस करवाना है, तो ये सारी चीजें, टैक्स भरना है, रोड टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, क्या क्या टैक्स वो लगते हैं, वो सारी चीजें आपको ये भरने. So then your car will be available to you. Yes guys, but here this is very similar to Ola. Do you need to purchase a car here? No. आपको जो कार चाहिए वो ले लो आप, है ना? अगर आपको चाहिए ब्रांडेड कार भी चाहिए तो आपको ओला पे मिल जाती है. यू कैन राइड दैट कार. ओके. एंड हु विल गोइंग टू मेंटेन एंड एवरीथिंग? कार को कौन देखेगा, कौन लुकआउट करेगा? इट इज दी, या प्रोवाइडर, यू कैन से प्रोवाइडर और ओला. सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द प्रोवाइडर हियर. सो दैट इसका कोई मेंटेनेंस निकलता है या फिर इसमें कुछ पंक्चर हो जाती है, अभी सपोज यू आर राइडिंग द कार, इन बिटवीन इफ दैट कार इज स्टॉप्ड, स्टक हो गया बीच में से ही, आपको जाना था किधर और बीच में स्टक हो गया, सो हु विल टेक केयर ऑफ दैट? आर यू गोइंग टू टेक केयर? आप उसको मेंटेन करने के लिए लेकर जाओगे? नहीं, ओला, ओला विल बी देयर फॉर द मेंटेनेंस. सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द ओला. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अगर खराब होती है तो छोड़ दो, जस्ट यू कैन लीव. सो दे विल बी डूइंग मेंटेनेंस एंड ऑल. सो दिस इज. एंड टेल मी गाइस, जब आप अपनी खुद की कार यूज करते हो तो इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल डलवाना है, राइट? सो यू नीड टू यू डोंट हैव टू पे एनी वन, राइट? आपको इसको किसी को पे नहीं करना है. रेंट देना है क्या आपको किसी को? नहीं. यू डोंट हैव टू पे फॉर द रेंट और द ड्राइव चार्ज, है ना? आप कितना किधर भी घूम सकते हो. यू कैन, यू आर फ्री टू रोम अराउंड एनीवेयर. बट हियर you need to book a ride, then you can move here and there, and then you need to pay for the period you are moving. That is called as the pay as you go. ये concept है, pay as you go. Pay G. Pay as you go. What is that? Pay G. It is not PUBG, it is pay G. So this is the pay as you go. तो आप जितना
भी यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। अगर मैं 1 घंटे के लिए सर्वर चलाता हूँ, सो आई हैव टू पे फॉर 1 आवर ओनली। सो 1 घंटे के लिए आपको पेमेंट करनी है, ना कि पूरे सर्वर का पेमेंट आपको पे करना है। सर्वर अगर जो 1 लाख का है, तो आपको 1 लाख नहीं पे करने हैं, आपको 1 घंटे का जितना भी चार्ज होता है उतना पे करना है। उसके बाद यू आर फ्री टू गो। So you don't have to pay for whole car in the cloud, right? So you just need to pay for the rent, whatever is there. So did you got the concept of here, on-premise or cloud? So tell me one last question for you. So for the on-premise, for the on-premise, is there any capex, guys? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या समझता है अभी? कि इनिशियल पेमेंट जो कि आप कैपिटल लगा रहे हो, जैसे कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कैपिटल पेमेंट करते हो, राइट? तो आप मतलब आपको मटेरियल भरना है, ये करना है, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज देयर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर? यस, एंड इट्स वेरी वेरी हाई, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स वेरी हाई। सो इज देयर एनी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर? यस गाइस, देयर इज एन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। व्हाई? अरे भाई मेंटेन भी करना है ना, एसी का बिल कौन भरेगा? राइट, यू आर गोइंग टू पे फॉर द बिल फॉर द एसी, और इसके लिए आपको कोई पर्सन लगेंगे, राइट, मेंटेन करने के लिए। तो उसका उसको सैलरी कौन देगा? तो यू आर द ओनली वन दैट इज गोइंग टू मेंटेन, एंड देयर इज द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑल्सो। सो फॉर द क्लाउड इज देयर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर? नो, जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स द जीरो। जीरो। आपको आपके पास अगर चाहिए 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी आप एक सर्वर को लॉन्च कर सकते हो, राइट? यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू रन अ सर्वर। देन operational expenditure, yes, you have here operational expenditure. Why? Because you need a professional expert to run the cloud. आपको एक क्लाउड को रन करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो कि आप हो आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज द OPEX, that is the payment to the guy who is maintaining the AWS infrastructure. That is the one पार्ट ऑफ द ओपेक्स। अनदर पार्ट, आप जो पे एज यू गो पेमेंट देने वाले हो ना, जो कि आप सर्वर लॉन्च करते हो, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है, पर आवर पेमेंट होती है, तो आपको एक बिल जनरेट होता है मंथली। सो यू नीड टू पे अ मंथली बिल हियर। सो यू नीड टू पे अ मंथली बिल। सो दिस बिल will be there in the operational expenditure. You can say that that is the operational expenditure. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे जीरो है, but here you need to pay monthly amount to the AWS as per your usage. आपका जितना यूजेज है उतना आप पे कर सकते हो। Yeah, so we will stop at this point, guys, and we will be looking into what are the models, different models of the cloud, and then we will create AWS account in the tomorrow session. तो आपको एक बेसिक से पूरा हर एक चीज एक्सप्लेन होंगी इधर, so don't worry about it. तो even though you know the concept, guys, कुछ डिफरेंस लग रहा था? What are your reviews? Yes, if you know already the concepts, but crystal clear हो रहा है हर एक चीज? Because many people are experienced here, so तो आपको अगर सुटेबल हो रहा है कि बिकॉज आई नीड टू गो फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल, सो दिस हैज टू बी क्लियर। तो आपके माइंड में किस टाइप के कंसेप्ट है उसको मेरे को थोड़ा सा रिब्रश करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द AWS, गाइज। तो मैं ये वर्चुअलाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वर्चुअलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू AWS। तो जब किसी को हम लोग पूछते हैं ना कि व्हेन आई स्टॉप एंड स्टार्ट द EC2 इंस्टेंस व्हाट विल हैपन इन द बैकग्राउंड, सो वो कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि हाउ host is operating, how this on-premise is working, then you can have a insights about it, how it is working. So any suggestion to me, guys? Anything that you need me to improve with these sessions, or it is okay? Speed is okay? Do you want to say anything? Everything is okay? Okay, so just be like give me the frank feedback, guys, because even though I am taking the sessions, so you need to be like two-way communicated, so that if something is there that from your end, please input me so that we can improve and we can go ahead, because understanding is more important than just taking the sessions. तो आपको ये sessions तो क्या YouTube पे इधर उधर किधर भी मिल जाएंगे, बट इस लेवल का कंटेंट शायद मिल पाए, राइट?
तो everything, and I will be sharing the video recordings on the Google Classroom. So अभी एक लिंक भी आपको मैं भेज दूंगा Google Classroom का. Just accept that link from your email, then you can have the recordings. So आप लोग recording भी सुन सकते हो. एंड शार्पली 7 AM को हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से. वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, 5 minutes or 10 minutes ऑल्सो. सो एग्जैक्टली एट 7 AM वी विल स्टार्ट एंड एग्जैक्टली एट 8 AM वी विल स्टॉप. 5-10 minutes इधर उधर हो सकता है लेट, बट स्टार्ट टाइम पे करेंगे हम लोग, ठीक है. ओके गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स. ओके गाइज, थैंक यू.